Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 15, Framing the Indian Constitution. My dear student, if you have remembered my previous class, where I have already discussed with you that the process, that which type of difficulties faced by Indian leader. I also explained about that the leader which play a very important, the central role in the making of our constitution. If you remember the leader's name, I told you that Pandit Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Vallabhbhai Patel, B.R. Ambedkar, Alladi Krishna Swami Iyer, and K. Munshi. Except it, I also told you about that two civil servants. One who was B.N. Rao and second S.N. Mukherjee. What was their work and how can they play their role in the making of constitution? These are all explained by me in your previous class. In your previous class, I also discussed about that in the Congress party. It was leading role in the making of Indian constitution. Why? Because 82% of members who direct came from the Congress party. So that's why communist, the group of the leaders, they questioned that this constituent assembly was not a leading the whole party of India. The Communist Party also questioned that if the British government ruled in India, how can it possible that the constitutions which was going to frame, it will not be influenced by the ideology of the Britishers? How can it would be free? It would be not affected by the Britishers. They question. And if you remember, I also. So, on the basis, you can easily understand that the question which was arose by communist, it was also considerable. But there is no space to think about that the Congress party and their members, they were influenced by the Britishers. Because we have discussed all the points, it is very clear that even the Congress party and their members, they came from one party and their ideology is one, but उनके अपने मंतव्य, उनके अपने विचार अलग अलग थे. तो इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा. आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द विजन ऑफ the constitution. This is very important to understand you the vision of the constitution. My dear student,
You have to understand that that what is the vision and what type of thoughts that would be our Indian leader in their mind. क्या सोचते थे वो, किस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रति सोचते थे। तो कहते हैं दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। एक स्वतंत्र देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान कैसा होगा, इन चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फ्रेमवर्क सुझाया गया था, एक बाहर का ढांचा, एक स्ट्रक्चर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सुझाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कि किस तरीके से वे संविधान निर्माण का कार्य करेंगे, उन्हें किस तरीके से संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। इसमें भारत को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में, रिपब्लिक के रूप में, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े जनजाति क्षेत्रों और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे वर्गों के लिए पर्याप्त गुणात्मक प्रावधान किए जाएंगे, सुधारात्मक प्रावधान किए जाएंगे भारतीय संविधान में। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर बरबस अतीत में हुए इन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिसमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज को तैयार किए गए थे जो भारतीय लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनके हित में हो। आप इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से संविधान की पूरी रूपरेखा, संविधान का पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये बात क्लियरली एक्सप्रेस कर दी कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें किस तरीके का संविधान बनाना है और हम अपने लोगों के हितों का संरक्षण किस तरीके से करेंगे। On 13 December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution in the Constituent Assembly. It was the momentous resolution that outlined the defining idea of the constitutions of the independent India and provided the framework within which the work of constitutions making was a proceed. It proclaimed India to be an independent sovereign republic, guaranteed its citizens justice, equality and freedom, and assured that adequate safeguard shall be provided for minorities, backwards, tribal areas and raised and other backward classes.
After outlining these objectives, Nehru placed the Indian experiment in a broad historical perspective as he spoke. He said his mind went back to the historic effort in the past to produce such a document of rights. Nehru's speech merits careful scrutiny what exactly was being stated here. What did Nehru's the seemingly the nostalgic return to the past reflect? What was the saying about the origin of the idea embodied in the vision of Constitution? In returning to the past and referring to the American and the French Revolution. I hope you have remembered about the French Revolution. When you would be in class 9th, the first chapter necessity history portion, the French Revolution. In this chapter, you have read about that right to equality, right to fraternity and right to liberty. समानता का अधिकार, बंधुता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार. तो ये आइडियोलॉजी भी यहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी. What was the saying about the origin of the ideas embodied past and referring to the Americans and the French Revolution? Nehru was locating the history of constitutions making in India within a longer history of struggle for liberty and freedom. The momentous nature of the Indian project was emphasized by linking it revolutionary movement in the past. But Nehru was not suggested that those events were to be provided and blueprint for present, or that the idea of those revolutions could be mechanically borrowed and applied in India. He did not define the specific form of the democracy and suggested that this had to be decided through deliberations, and he states that the ideals and the provisions of the constitutions introduced in India could not be just derived from elsewhere, where are not going just to copy. He said the system of government established in India, they declared, had to fit in with the temper of our people and be acceptable to them. It was necessary to learn from the people of the West from their achievement and failures. But the Western nation too had to learn from experiment. Elsewhere, they too had to change in their own nation of the democracy. The objective of the Indian constitutions would be to fuse the liberal ideas of democracy, the socialist idea of economic justice, and the readapt and the rework all these ideas within the Indian context. Nehru's plea was creative thinking about that was appropriate for India. My dear student, इस पैराग्राफ में एक चीज एकदम क्लियर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस ऑब्जेक्टिव डिसीजन में कुछ बातों को एकदम क्लियर एक्सप्लेन किया. उन्होंने कहा कि आज हम जो करने जा रहे हैं, आज जो हमारा ये प्रयोग है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक माइलस्टोन बनेगा. हम किसी की कॉपी नहीं करने जा रहे हैं,
इवन हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियोलॉजी को लिया, हमने अमेरिकी क्रांति से भी कुछ लिया, हमने कुछ सीखा, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाएंगे, मानेंगे, रखेंगे जो देश के नागरिकों के हित में होगा। उन्होंने क्लियर कहा कि हम कॉपी नहीं कर रहे, ना ही हम पास्ट का ब्लूप्रिंट कर रहे हैं, बल्कि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दे रहे हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक है। इफ यू विल सी पेज नंबर 441, source 1, where Pandit Jawaharlal Nehru clearly explained that we are not going just to copy. हम कॉपी करने नहीं जा रहे हैं। 30 दिसंबर 1946 को अपने एक प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पूरा स्पीच आपके बुक में, my mind goes back to the various constituent assembly that have gone before and of what took place at the making of the great American nation, when the father of the nation made and fashioned out the Constitution, which has stood the test so many years, more than a century and a half, and of the great nation, which has resulted, which has been built up on the basis of that Constitution. My mind goes back to the revolution which took place also over 150 years ago, and the Constituent Assembly that met in the gracious and the lovely city of the Paris, which has fought so many battles for freedom, to the difficulties that the Constituent Assembly had, and to how the king and other authorities came in way and still in continued. The House will remember that when these difficulties came and even the room for the meaning was denied to the then Constituent Assembly, the B took themselves to the open tennis court and met there and took the oath, which is called the oath of the tennis court, that they continued meeting in the spite of kings, in spite of others, and did not despair till they had finished the task they had undertaken. Will I trust that it in the solemn spirit that we two are meeting there, and that we two, whether we meet in the chamber of the fields or in the marketplace, will go on meeting and continue our work till we have finished it. This speech was given by Mr. Pandit Jawaharlal Nehru. Then my mind goes back to a more recent revolution which gave rise to new type of state, the revolution that took place in Russia, and out which arise the union of the Soviet Socialist Republic, another might countries which is playing the tremendous part in world, not only in mighty country but for us in India and neighboring countries. So our mind goes back to this great example, and we seek to learn from their success and to avoid their failures. Perhaps we may not be able to avoid failure because some measures of failure inherent in the human effort. Nevertheless, we shall advance. I am certain, in spite of obstructions and the difficulties, and achieve and realize the dream that we have dreamed so long. This speech was very long. I think there is no need to read the whole speech in a class.
But what Pandit Nehru explained in his speech, what Pandit Nehru want to tell you, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते थे, what he want to express. He wanted that कि किस तरीके से पूरे देश में क्रांति हुई, कई देशों में लंबी यातनाओं के बाद, लंबी लड़ाइयों के बाद वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता मिली। फिर उन लोगों ने अपने लिए एक कानून बनाया। कहते हैं कि मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले यह काम कर चुकी हैं। मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है, जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों, 1.5 सदी से भी ज्यादा समय तक काल की कसौटी पे खरा उतरा। उन्होंने एक महान राष्ट्र की क्रांति की ओर भी निगाह डाला। ये क्रांति जो 150 साल तक, 150 ईयर्स तक चली, जो अन्य स्थान पर हुई। मुझे ये संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य खूबसूरत शहर में जुटी थी। इस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा व तमाम अन्य अधिकारी उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई हैं और जब संविधान सभा के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने टेनिस कोर्ट के खुले मैदान में सभा की थी और शपथ ली अपने देश के संविधान के बनाने के लिए। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजाओं व अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी, तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। मुझे विश्वास है कि हम भी इसी शुद्ध भावना से यहां इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजारों में, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेंगी जब तक हम अपना पूरा काम संपन्न नहीं कर लेंगे, कंप्लीट नहीं कर लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को कंटिन्यू रखते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच में जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुझे हाल की एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राजा का जन्म हुआ और वो रूस की क्रांति थी, 1970 की थी, रशियन रिवॉल्यूशन की बात वो कर रहे थे, जिसने दुनिया के शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज ये देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। वे सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलता से सीखना चाहिए और हमें उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि हम उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल न हो पाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कोशिश का प्रयास बहुत थोड़ी नाकामी की भी गुंजाइश होती है। यदि जब वो काम करता है तो उसमें सफलता और असफलता दोनों एक साथ आने के चांसेस रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़े और अपने सपनों को प्राप्त कर साकार करके ही दम लेंगे, जिसे हमने इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए रखा है। इसके बाद लंबा स्पीच है। हमने संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और प्रबल संकल्प लिया है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होना नियत है। इसकी स्वतंत्रता, इसको गणराज्य के रूप में स्थापित होना स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया
कि आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा। मैंने उन्हें कहा कि निसंदेह ये सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थानों के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। हम लोकतंत्र कैसा होगा, इसकी शकल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है, ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की संरचना का सूत्रपात कर रहे हैं। इन बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में कहा। आप इस स्पीच को देखिए, इन्हें पढ़िए, पेज नंबर 1411, 1412 पे क्लियर दिया हुआ है। अब नेहरू के पूरे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को देखिए, नेहरू का पूरा स्पीच को सावधानी से इसका इंस्पेक्शन करिए, इसका पड़ताल करिए। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं, नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, संविधान को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को किस स्वरूप में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता की लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत की क्रांतिकारी क्षणों के समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय ये नहीं है कि उन घटनाओं का आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए या उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे समझे भारत के ऊपर थोप दिया जाए, लागू कर दिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर कहते हैं कि किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध हम पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाले चर्चाओं से उभरेगी। हमारा जो डिस्कस और डिबेट होगा, इसके आधार पर हमारा लोकतंत्र बनेगा। वो इस बात पर जोर देते हैं कि भारत के संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उन्होंने शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात पे बहुत बल देते हैं। वो कहते हैं कि हम जो भी बनाएंगे, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी what we are making. It was depend upon the long discussion debate which will be in our Constituent Assembly. That was considered by Pandit Jawaharlal Nehru. Without any hesitation, Pandit Jawaharlal Nehru accepted that what we are going to prepare, what we are going to framing for our constitution, for our nation, it should be based on long discussion debate which was done by our people. It was according to temper of our common citizen. कहते हैं कि हम कुछ नकल नहीं कर रहे हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो, वो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियां और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम पश्चिम समाज, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर को भी अन्य स्थानों पर उनके प्रयोग से बहुत कुछ हमें सीखना पड़ा था। और लोकतंत्र भी अपनी अवधारणाओं को उसके अनुसार परिवर्तित कर सकती है। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचार और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे से समावेशन किया जाएगा। भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है,
इस बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर इस बात को करते हैं कि किस तरीके का हमारा देश, किस तरीके की हमारी सोच, किस तरीके की हमारी विचारधाराएं होनी चाहिए। देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक ऐसा कानून बने जो सभी के हितों को प्रभावित करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में एक वर्ड कहा कि someone questioned on my speech that why I am not using the particular democratic word in my whole speech, but I want to clarify them that it is the history and culture of our nation that we follow the democratic way of life. We follow the democratic institutions. So no one have any doubt that we are not accepting, we are not going to accept the democratic way of the government. We are going to accept democratic government. हम भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उनकी व्याख्या की बात कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, और हमें ऐसा करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्लियर कर देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या कारण बताया। इन चीज़ों को आपको समझना है, सोचना है, स्पीच पढ़िए, एनालिसिस करिए, उन चीज़ों को ढूंढिए। क्या कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में, और तब आप समझेंगे कि भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की क्या मीनिंग है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा द विल ऑफ द पीपल। द विल ऑफ द पीपल। इन दिस टॉपिक वी विल रीड द वेरियस लीडर्स एंड their view which they discussed in the front of, I mean to say, in the Constituent Assembly. They asked for some demand for their own peoples and they questioned on some question, some systems. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक द विल ऑफ द पीपुल, लोगों की इच्छा, द विल ऑफ द पीपुल पे बात करेंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।